we take another type of question. That is the very good question for the examination point of view. Investigate for what values of lambda mu the equations x plus y plus z is equal to 6, x plus 2y plus 3z is equal to 10, x plus 2y plus lambda z is equal to mu have unique solution. First is no solution, second is unique solution, and third is an infinite solution. So again here A is equal to, here A is equal to 1 1 1 1 2 3 1 2 lambda. Once again 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 3 1 2 lambda 1 2 lambda, and augmented matrix, this is equal to 1 1 1 and this is 6, then 1 2 3 1 2 3 and this is 10, then this is 1 2 lambda 1 2 lambda and this is mu. Clear? This is. Now again we transfer first into the echelon form. That means this augmented matrix we apply the row elementary transformation. This operation for R2 and R3. For R2 again this the same type, R2 minus R1 and R3 minus R1. We see here first row as it is, second row 1 minus 1 this is 0, 2 minus 1 this is 1, 3 minus 1 this is 2, 10 minus 6 this is 4. Once again 1 minus 1 0, 2 minus 1 1, 3 minus 1 2, 10 minus 6 4. This is R3 minus R1. For R3 1 minus 1 this is 0, 2 minus 1 this is 1, lambda minus 1 this is lambda minus 1, and this is mu minus 6, mu minus 6. Alright, this is. Again we see this, we have to find here 0, that is operation for the R3 minus R2. So this is 1 1 1 this is 6, 0 1 2 this is 4, this is 0 1 minus 1 this is 0, lambda minus 1 minus 2 that is lambda minus 3, and mu minus 6 minus 4 that is mu minus 10. We see this is in echelon form. This is in echelon form. Now we go through the step by step. That means as per the question we see for the no solution. See here how no solution we can get. हमें नो सॉल्यूशन तभी प्राप्त हो सकता है जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक है ओवरऑल और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की जो रैंक है दोनों अलग अलग आए, दोनों अलग अलग आए। तो देखिए फर्स्ट the first solution, that means
when lambda is equal to 3, when lambda is equal to 3, or you can say lambda minus 3 is equal to 0. that means lambda is equal to 3. यहाँ यदि lambda is equal to 3 मिल जाए हमें, and mu minus 10 is not equal to 0. यहाँ पर तो हमको 0 मिले, लेकिन यहाँ हमको 0 न मिले. that means mu is not equal to 10. we have, तो हमें क्या होगा, हमें ये होगा रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारी 2 हो जाएगी, क्योंकि यदि यहाँ 0 हो जाता है, यहाँ 0 हो जाता है तो हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक 2 हो जाएगी, और यदि यहाँ 0 नहीं होता है तो हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक हमारी 3 हो जाएगी, एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3. Hence, in this case, the equation is inconsistent and there is no solution. इस केस में जबकि दोनों की रैंक अलग अलग आ रही है, तो जो सिस्टम होगा वो असंगत होगा और इसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा. सेकेंडरी एज पर द क्वेश्चन वी हैव गिवन फॉर यूनिक सोल्यूशन. अब हम ये देखते हैं यूनिक सोल्यूशन हमारे लिए कब हो सकता है. यूनिक सोल्यूशन तब होता है जब दोनों की रैंक सेम हो जाए और नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल हो जाए. दैट मीन्स व्हेन लैम्डा माइनस 3 इज not equal to 0. that means lambda is not equal to 3. we have, यदि लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं होती है तो यहाँ 0 प्राप्त नहीं होगा, और यदि यहाँ 0 प्राप्त नहीं होगा तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स की भी रैंक 3 हो जाएगी और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की भी रैंक 3 हो जाएगी. म्यू पर डिपेंड करेगा ही नहीं, म्यू की वैल्यू कोई भी हो सकती है, इसलिए म्यू की चर्चा की ही नहीं गई. क्या किया गया, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3. लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 होगा तो यहाँ पर नॉन जीरो रो प्राप्त होगी. दैट मीन्स 1 2 3 कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक भी 3 हो जाएगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की भी रैंक 3 हो जाएगी, और नंबर ऑफ वेरिएबल भी 3 है. तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वी हैव rank of the coefficient matrix is equal to rank of the augmented matrix is equal to 3 and is equal to 3 is equal to number of variables. तीन ही variables हैं, number of variable. Hence in this case system is consistent and there is unique solution. और इस केस में सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और वो जो है उसका अद्वितीय हल प्राप्त होगा. थर्ड टाइप ऑफ, दैट इज थर्ड, एन इनफाइनाइट सोल्यूशन. एन इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए जैसा हम जानते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन हमें कब प्राप्त होता है. इनफाइनाइट सोल्यूशन हमें तब प्राप्त होता है जब दोनों की रैंक सेम हो लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो. इसका मतलब ये है कि यदि यहाँ भी 0 मिल जाए और यहाँ पर भी 0 मिल जाए तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स की भी रैंक 2 हो जाएगी और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की भी रैंक 2 हो जाएगी. इस केस में
हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, जबकि इसकी रैंक कितनी मिलेगी हमें, थ्रू 2 प्राप्त होगी। दैट मीन्स व्हेन लैम्डा माइनस 3 is equal to 0 and mu minus 10 is equal to 0, that means lambda is equal to 3 and mu is equal to 10, right? we have, इस केस में हमें क्या मिलेगा, rank of A is equal to rank of augmented matrix is equal to 2 but less than 3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जितने वेरिएबल 3 है उससे कम होगी रैंक, चूंकि 2 आई है जो कि 3 से कम है। हेंस इन दिस केस सिस्टम इज कंसिस्टेंट and there is infinite solution। इस केस में जो सिस्टम होगा वो संगत तो होगा और उसके अनंत हल प्राप्त होंगे। तो थैंक यू सो मच।